صدری ویسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگلا شاعر ہے جی فی الحماستی والفروسیہ، بہادری اور شاہ سواری کے بارے میں اشعار ہیں عمرو بن مادی کرب الزبیدی کے۔ شاعر کا تعارف ہے، وہ عمرو بن مادی کرب الزبیدی، اس کا نام عمرو بن مادی کرب الزبیدی ہے، یمن کا شاہ سوار ہے اور عربوں کا خطیب ہے۔ ابو ثور اس کی کنیت ہے، اور جنگجو میں بہت جنگجو ہونے میں اس نے شہرت حاصل کی، اور اس کو زید الخیل، یہ بھی ایک شاعر ہے، اس پر بھی اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جب غزوہ تبوک سے 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، پھر اسلام لے آئے اپنی قوم کے ساتھ، پھر اس کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا، پھر ثم رجع الیہ، پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا، وجاہد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کیا، وشہید القادسیہ، اور جنگ قادسیہ میں بھی شریک ہوا، اور ان کی عمر تقریباً 110 سال تھی، اور آخری جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں یعنی 23 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو جنگ نہاون میں شہید کیا گیا، اور ان کی قبر اسی کے باہر کے علاقے میں ہے۔ اور عمر بن مادی کرب کے شعری اور نثری مقطوعات ادب کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جس میں ہم اسے اپنے آپ کے بارے میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں شاعری میں۔ اور جو عمر تھا وہ بہت موٹے جسم والا اور کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ روایت کیا جاتا ہے اس کی خبروں میں سے، اس واقعات میں سے، اس باب میں بہت کچھ، اور ان میں سے یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے 2000 وظیفہ مقرر کیا۔ فقال له یا امیر المؤمنین، تو اس نے آپ سے کہا اے امیر المؤمنین، الف ہا ہنا، 1000 تو یہاں جائے گا، واوما الی شق بطنہ یمین، اور اس نے اپنے پیٹ کے دائیں طرف اشارہ کیا، والف ہا ہنا، اور 1000 یہاں، واوما الی شق بطنہ الاسیر، اور اس نے اپنے پیٹ کے بائیں جانب اشارہ کیا، فما یکون ہا ہنا، تو یہاں کیا ہوگا، واوما الی وسط بطنہ، اور اس نے اپنے پیٹ کے درمیان میں اشارہ کیا، فضاحک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، وزادہ 500، اور اس کے لیے 500 کا اضافہ کر دیا۔ شاعر کہتا ہے جی، عبارت ہے، لیس الجمال، نہیں ہے خوبصورتی، بمیزر لباس میں، خوبصورتی نہیں ہے لباس میں، فعلن پس تو جان لے، و ان اگرچہ ردیتا تجھے اڑا دی جائے، بردہ منقش چادر، اگرچہ تجھے منقش چادر ہی کیوں نہ اڑا دی جائے۔ خوبصورتی لباس میں نہیں ہے، بس تم جان لو، اگرچہ تمہیں خوبصورت منقش چادر اڑا دی جائے۔ وَإِنَّ الْجَمَالَ مَعَادِنٌ وَمَنَاقِبٌ، بے شک جمال یا حسن و خوبصورتی تو حسب اور نسب ہیں، اورثنا وارث بناتے ہیں، مجدہ بزرگی کا، جو کہ بزرگی اور عظمت کا وارث بناتے ہیں۔ بے شک حسن و جمال اور خوبصورتی تو حسب اور نسب ہے، جو کہ خوبصورتی کا وارث اور بزرگی کا وارث بناتے ہیں۔ کل امرئ، ہر شخص، یجری دوڑ رہا ہے، الی یوم الحیاج، جنگ کے دن کی طرف، بما اس کے ساتھ، استعدا جو اس نے تیار کیا۔ لما رأیتو، جب دیکھا میں نے، نسان اپنی عورتوں کو، یفحصنا وہ دوڑ رہی ہیں، وہ تلاش کر رہی ہیں، بالمعزائی دوڑتے ہوئے، شدہ سختی سے، پتھریلی زمین میں، معزہ ہے پتھریلی زمین میں، شدہ تیزی سے۔ جب میں نے دیکھا اپنی عورتوں کو، یفحصنا وہ دوڑ رہی ہیں، بالمعزائی پتھریلی زمین پر، شدہ تیزی سے، وبدت اور ظاہر ہوئی، لمیس لمیس کا، انہا گویا کہ وہ، مدر السمائی آسمان پر 14ویں کا چاند ہو، اذا تبدا جب وہ خوب روشن ہو جائے، وبدت محاسن ہوا اور ظاہر ہوئے اس کے وہ محاسن، التی تخفا جو کہ ابھی تک مخفی تھے، چھپے ہوئے تھے، وکان الامر جدہ اور معاملہ سنجیدہ ہو گیا، اور معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔
नाजल तो मैंने ललकारा कबशहू उनके सरदार को, वलम अरा और नहीं मैंने देखा, मिन निजाली पुकारने के अलावा अलकबशी सरदार के बुद्धा चारा, और मैंने सरदार को पुकारने ललकारने के सिवा कोई चारा ना देखा। वो यंजुरूना नजर मान रहे हैं दमी मेरे खून की, वान जरूर मैं नजर मानता हूँ इन अगर लकी तो मेरा सामना हो जाए इनसे भी नशुदा कि मैं उन पर लपक पड़ूंगा, टूट पड़ूंगा। कम कितने ही मिन अखिन भाई ली मेरे स्वालिन ली, मेरे कितने ही नेक भाई हैं। वब्बातुहु बियदी अलहदा, मैंने कब्र में उतारा उनको, लहद में उतारा उनको अपने हाथों से। माँ इन जजीतु वला हली तू, ना मैं बेसब्रा हुआ ना मैं घबराया, भला यरुद्दू और नहीं वापस लौटा सकता बुकाया मेरा रोना धोना, जिंदा जरा भर नुकसान को भी। अलबस्तु मैंने उनको पहनाया, असवाबो उनका लिबास, असवाबो उनका कपड़े यानी उनका कफन पहनाया, व खुलिकतु और मैं पैदा हुआ, योमा खुलिकतु जिस दिन मैं पैदा हुआ, जल्दा बहादुर, और पैदा मैं तो पैदा ही बहादुर हुआ था। ज़हाब अल्लाजीना चले गए वो लोग, ओहिब्बुहुम जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, और बकी तो और बाकी रह गया मैं, मिसला मानिद अस्सैफी तलवार के फरदा तन्हा, और मैं तलवार की मानिंद तन्हा रह गया। क्या कहता है कि लैसल जमालु बिमिज़ानिन, लिबास में खूबसूरती नहीं होती, बस तुम जान लो अगरचे नक्श चादर ही क्यों ना उड़ा दी जाए। क्या कहता है कि खूबसूरती एक ज़ाहिरी अमल नहीं है कि जो इंसान अपने आप को मेकअप कर ले, इंसान अपने ऊपर कोई लिबादा चढ़ा ले, मलमा कारी कर ले, जाहिर में कुछ दिखाए और बातिन में कुछ हो। तुम इस बात को जान लो कि तुम जितनी मर्जी खूबसूरत मुनक्किश चादर पहन के आ जाओगे, तुम जितना मर्जी प्यारा लिबास पहन कर आ जाओगे, तुम जितना मर्जी हसीन लिबादा ओढ़ लोगे, खूबसूरती उसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि खूबसूरती एक जाहिर अमल नहीं है। शायर के नज़दीक खूबसूरती ये नहीं है कि इंसान जैसा भी हो वो मेकअप करके अपने आप को छुपा ले, जैसे कि सुहेब बिन नबी सुलमा ने भी कहा था ना कि इंसान के पास कैसी ही कोई खसलत क्यों ना हो, वो अगर उसको छुपाना चाहे तो क्या होगा कि एक ना एक दिन वो जान ही ली जाएगी। तो इसलिए शायर कहता है ये जान लो कि तुम जितना मर्जी अपने आप को मेकअप से, खूबसूरत लिबास से, अच्छे लिबादे से छुपाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा बातिन कभी भी छुपा नहीं रह सकता, वो हमेशा जाहिर होकर ही रहेगा। चाहे तुम अपने ऊपर जितनी मर्जी कढ़ाई शुदा नक्शो निगार बनी हुई चादरें ले लो कि तुम खूबसूरत नजर आओ। खूबसूरती दरअसल क्या है, इन्नल जमाला मादिन व मनाकिबुन, बेशक खूबसूरती तो वो हसब और नसब है जो कि बुजुर्गी और अजमत का वारिस बनाते हैं। वो कहता है जाहिर खूबसूरती खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती दरअसल किसी इंसान का आला हसब और नसब वाला होना है, इंसान की तरबियत है, किस माहौल में हो रही है। इंसान को अजमत वाला माहौल मिल रहा है, उसको अच्छे अखलाक सिखाए जा रहे हैं, उसकी अच्छी परवरिश हो रही है, उसको अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया जा रहा है, तो इंसान की हकीकत नहीं बदलती। अगर इंसान बनावटी चीजों से छुपने की कोशिश करे, इंसान की शराफत और बुजुर्गी का जो मायार है वही दरअसल सच होता है। उसकी जो शराफत और बुजुर्गी का मयार है वही सच होता है। उसकी सीरत और किरदार से वाज़ेह होता है कि इंसान कितना खूबसूरत है, उसके किरदार से खुशबू आए। कहते हैं ना कि वो, अगर आप एक शख्स के पास बैठते हैं, अच्छे किरदार वाले शख्स के पास, तो आपसे भी उसके किरदार की खुशबू आने लगती है। जैसे आप क्या करें, सोहबत इंसान पर बहुत अच्छा असर अंदाज होती है कि अगर वो किसी भट्टी वाले की सोहबत में बैठेगा
तो उसके ऊपर भी कपड़ों पर चिंगारियां गिरेंगी, और कपड़े खराब होंगे और बदबू आएगी और उसके कपड़े जगह जगह से ऐबदार हो जाएंगे। जबकि अगर वो किसी इत्र फरोश के पास बैठेगा तो अगरचे कि वो इत्र का काम नहीं भी कर रहा, फिर भी उसके कपड़ों में से उसमें से खुशबू आना शुरू होगी। इसी तरह इंसान का किरदार अगर अच्छा है, अगर इंसान की सीरत अच्छी है, तो दरअसल वही उसकी हुस्न और खूबसूरती का मयार है। तो वो शख्स जिसके घुट्टी में शराफत पड़ी होगी, वही शख्स खूबसूरत होगा। नसब और नसब के लिहाज से वो जितना आला होगा, जितने अच्छे अखलाक का हामिल होगा, जितनी बुजुर्गी का वो हामिल होगा, उतना ही वो शख्स हुस्न और जमाल और खूबसूरती का अहल होगा और शराफत और बुजुर्गी का हकदार ठहरेगा। फिर शायर कहता है कि हर हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक जो उसने तैयार किया हुआ है उसे लेकर जंग के दिन की तरफ चल रहा है। जैसे शायर के बारे में आपने देखा है कि शायर जहाँ जंगजू और बहुत बहादुर था, तो वो अपने हिसाब से देखता है कि हर शख्स अपनी तैयारी करके जंग के दिन के लिए जा रहा है। जंगी जुनून के बारे में और जंगी तैयारियों को यहाँ पर शायर उसकी मंजरकशी कर रहा है और वो लोगों के जज्बात के बारे में इज़हार ख्याल करता है कि हर कोई शख्स जो होता है वो आने वाले जो खतरनाक हवादिस और वाक़यात हैं उनके लिए भरपूर तौर पर तैयार हो रहा होता है। और अपने बारे में भी वो कहता है कि मैं भी उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। मैंने अपनी जो ज़रा है, अपना लिबास और अपनी जो सवारी है जंग के लिए, तेज रफ्तार घोड़ा, ताकतवर घोड़ा और इसके साथ साथ तलवारें जो कि बंदों को मूली गाजर की तरह काट देती हैं, वो मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है। यानी मैं आने वाले किसी भी हादसे के लिए और किसी भी वक्त के लिए तैयार हूँ। मैंने खुद को तैयार किया हुआ है। ऐसे वो कहता है कि लोग भी जो हैं वो जंगी तैयारी के को तेज किए हुए हैं। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत के मुताबिक हर हर जो ताकतवर चीज़ है, हर हर ताकतवर हरबा है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैदान जंग की तरफ रवां दवा है। पूरे जोबन से वो तैयार होकर मैदान जंग की तरफ आ रहा है। गोया हर कोई शख्स अपने मद्दे मुकाबिल के लिए तैयारी करते हुए उसको नजर आता है। फिर वो कहता है इसी तैयारी के दौरान में जब मैं देखा अपनी औरतों को, तो क्या है कि वो मुझे पथरीली जमीन पर तेजी से दौड़ती नजर आई। वो कहता है कि जब मैं इसी जंग के सीन में देखता हूँ लोग तैयारी करके जा रहे हैं, तो अपनी औरतें भी मुझे नजर आती हैं और मैं उन औरतों को इतनी मुश्किल में देखकर, इतने मुश्किल और कठिन हालात में देखकर परेशान हो जाता हूँ कि कैसे वो बेचारियां और अपनी पथरीली ज़मीन पर चल रही हैं, जिस पर उनको चलने में भी दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन वो तेज़ी से वहाँ से निकलने की बात कर रही हैं, उस मैदान को छोड़ना चाह रही हैं। तो मैं जब अपनी औरतों का ये काम देखता हूँ, अपनी औरतों को मुश्किल हालात में देखता हूँ, तो मेरा दिल परेशान हो जाता है, अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है मेरी। कि मुझे ये मंज़र बहुत ही अजीबो-गरीब लगता है कि मेरी औरतें, मेरे कबीले की औरतें इतनी मुश्किल में नज़र आ रही हैं, इतनी परेशानी में नज़र आ रही हैं। तो कहता है कि इसी दौरान जब मैं उन औरतों को देखता हूँ तो मेरा तसव्वुर अपनी महबूबा लबनीज़ की तरफ जाता है। तो वो इन औरतों के दरमियान मैं तसव्वुर में देखता हूँ कि वो औरतों के दरमियान मुझे नज़र आती है और इस तरह नज़र आती है गोया कि वो आसमान पर 14वीं का चाँद हो। कि 14वीं का चाँद कैसे होता है, आसमान पर उसकी पूरे तौर से रोशनी फैली हुई होती है कि बाकी औरतें आम आसमान पर सितारों की मानिंद हैं, लेकिन मुझे अपनी जो महबूबा है वो उनमें 14वीं के चाँद की मानिंद रोशन नज़र आती है, और वो भी 14वीं का चाँद, वो चाँद जब वो खूब रोशन हो चुका हो, यानी जिस वक़्त में चाँद की रोशनी मुकम्मल हो जाती है, इस तरह वो मेरी महबूबा मुझे तमाम औरतों में ऐसे नुमायाँ नज़र आती है, जैसे कि आसमान पर 14वीं का चाँद खूब रोशन होने की हालत में नज़र आता है। कहता है कि फिर
उस रोशनी में क्या होता है कि उसके वो महासिन, उसकी वो खूबियाँ, उसका वो हुस्न जमाल जो अब तक मुझ पर मख्फी था, वो भी वाज़ेह हो जाता है, और जो मामला है वो संजीदा हो जाता है। वो कहता है कि इस खूबसूरती के आलम में, कि वो चौदहवीं के चांद की तरह रोशन नजर आ रही है, इस रोशनी में मुझे अपनी महबूबा की तमाम खूबियाँ, जो उसके अंदर हुस्न जमाल है, वो बदरजा अतम मौजूद है, वो मुझ पर और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाता है, जो कि पहले मुझे कभी नजर नहीं आया था। और अब मामला संजीदा हो गया है कि मैं उसकी मोहब्बत में मजीद गिरफ्तार हो गया हूँ, और मेरे लिए इस बात से कोई राह फरार नहीं रही कि मैं उसके बारे में गुफ्तगू करूँ, मैं उसके हुस्न को बयान करूँ। वो कहता है कि मैं अब इस मामले पर खामोश नहीं रह सकता, बल्कि मामला संजीदगी को पहुंच गया है, और ये मामला बहुत कठिन और मुश्किल हो गया है कि उसके हुस्न के जलवों ने मुझे अजीब सी कठिन कैफियत में डाल दिया है। कि पहले वही महबूबा जो मेरे सामने आती थी, उसके हुस्न के जलवे मुझे नजर आते थे, लेकिन अब वो हुस्न के जलवों को चार चांद लग गए हैं, और आसमान पर चौदहवीं के चांद की तरह खूब रोशन होकर मेरे सामने आ गई है। इस रोशनी में उसकी खूबियां, उसके हुस्न के जलवे और भी आया हो गए हैं, जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। अब मेरी मोहब्बत का मामला और संजीदा हो गया है, अब मैं खामोश नहीं रह सकता, बल्कि मैं इसको बयान करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने उनके सरदार को पुकारा, और मैंने उसको पुकारने के सिवा, पुकारा नहीं, ललकारा, ललकारने के सिवा कोई चारा ना देखा। शायर कहता है कि मैं शायर सिर्फ मैदान जंग में जाता ही नहीं है, बल्कि वो खुद को बहादुर और जंगजू साबित करने के लिए ये बात करता है, अपनी शाहसवारी को बयान करने के लिए ये बात करता है कि मैंने उनके सरदार को ललकारा, मैंने ललकार के उसको कहा कि आओ मेरे मुकाबले पर, निकलो मैदान जंग की तरफ, मैं अकेला ही नहीं यहाँ पर रहूंगा, बल्कि मैं तुम्हें भी अपने मुकाबले पर ला कर रहूंगा। और कहता है कि मुझे इसके सिवा कोई चारा नजर नहीं आया, मैं खुद उन पर हमला करूंगा, अगरचे वो खामोश हो और वो अमनो सलामती में हो, मैं खुद जाके, मैं इतना जंगजू और बहादुर शख्स हूँ कि मैं खुद जाके उनकी उनको मैदान जंग में लाने वाला होता हूँ कि आओ और लड़ो मेरे साथ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं मैदान जंग से हारने वाला नहीं हूँ, मैं पीठ फेरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आगे बढ़कर हमला करने वाला हूँ। आओ, है कोई मुझसे अपने आप को, अपने बच्चों को यतीम करवाने वाला, है कोई मेरी तलवार के नरगे में आने वाला, आओ और लड़ो मेरे साथ। और पुकारता भी उनके सरदार को है, अपने मुकाबिल के सरदार को, कि मैं किसी आम शख्स से हमला करने वाला नहीं हूँ, लड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं सरदार से कहता हूँ कि आओ और मेरे मुकाबले पर लड़ो मुझसे। फिर शायर अपना और बहादुराना जज्बा जाहिर करता है, कहता है हूँ यंजुरूना दमी, वो मेरे खून की नजर मान रही है। और मैं नजर मान रहा हूँ कि अगर मेरा उनसे मुकाबला हो गया तो मैं उन पर टूट पड़ूंगा। वो कहता है कि उन्होंने नजर मानी है कि ये शख्स हमारे काबू आ जाए, मेरे खून के नजर मानी है कि हम इसका खून करके रहेंगे, हम इसको मार के रहेंगे। कहता है उन्होंने क्या नजर मान ली, नजर तो मैं मान रहा हूँ कि अगर मेरा उनसे सामना हो गया तो मैं तो उन सब को हलाक करके रख दूंगा, मैं उन पर टूट पड़ूंगा। टूट पड़ने का मतलब है ना कि एक होता है इंसान तरीके से किसी चीज को हासिल करे, एक होता है किसी चीज पर टूट पड़े। तो कहता है कि मैं उन पे टूट पड़ूंगा, वो मेरे खून की नजर मान रहे हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे, मैं उनके अजाइम को और उनके इरादों को खाक में मिला दूंगा। मैं ऐसा हमला करूंगा कि उनके बाद में आने वाले एक मिसाल बना लेंगे कि ऐसा शख्स ने हमला किया कि उसने पूरे का पूरा लश्कर ही हलाक करके रख दिया। कहता है मैं अपनी बहादुरी की वजह से, मैं अपनी ताकतवरी की वजह से, मैं अपनी शाहसवारी की वजह से उन पर गालिब आ जाऊंगा, और उनके तमाम के तमाम, उधर बेटे उधर आपका जूता पड़ा है उस तरफ, नापाक इरादों को तहस नहस कर दो। बेटे इसके नीचे बैठ के नीचे भेजा।
कहता है मैं उनकी नजर की बजाय, मैं उनके काबू में आने वाला नहीं हूँ, उनकी नजर की बजाय मैं अपनी नजर पूरी कर डालूंगा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। उसको जूता निकाल के दो, उसको नीचे। कम मिन अखिन ली सालिहिन, कितने ही मेरे नेक भाई हैं। गम मिन अखिन ली सालिहिन, कितने ही मेरे नेक भाई हैं। बव्वातुहु बियदी जलाता, कि मैंने उनको अपने हाथों उनकी लहद में उतारा, कब्र में उतारा। शायर कहता है कि ये दुनिया फानी है। बेटे दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद। कि ये दुनिया फानी है और ये बड़ी बेसुबात है, इसमें किसी शख्स को सुबात नहीं, किसी को यहाँ नहीं ठहरना। कहता मेरे कितने ही बहादुर भाई थे, मेरे प्यारे भाई थे, मेरी तरह जंगजू थे। मैंने उनको अपने हाथों से, वो भी इस दुनिया से चले गए, मैंने भी एक दिन चले जाना है। तो कहता है कि वो दुनिया से चले गए हैं, मैंने उनको अपने हाथों से लहद में उतारा। नेक लोग थे जो कोई शरीक नहीं होते थे जंगों में, फसाद में, और जो क्या करते थे कि वो लोगों को अता करते थे, लोगों पर एहतियात करते थे, बख्शिशें देते थे, उनको नेमतों से नवाजते थे। यानी वो लोग जो कि नेक थे वो भी इस दुनिया से चले गए। अगर वो मैदान जंग में नहीं भी जाते थे, वो नेक थे, लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए। कि अगर कोई मैदान में जाके नहीं मरता तो मरना उसने फिर भी है। तो वो कहता है कि वो नेक लोग थे, वो दूसरों की मदद करने वाले होते थे। मैं उनको भी अपने हाथों के साथ मैंने इस दुनिया, अपने कब्र से, कब्र में उतारा है। और उसके कब्र में उतारते हुए वो कहता है कि मैंने ना तो जज़ा फजा की, ना मैं घबराया और ना मैं खौफजदा हुआ। क्योंकि वो कहता है कि जैसे लोग घबरा कर, परेशान होकर अपना सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, हाथ से नहीं छोड़ा। और ना इस वजह से कि मैं जानता हूँ, मैं एक हकीकत पसंद शख्स हूँ, कि मेरा जो रोना धोना है वो मेरे नुकसान को किसी तौर भी वापस नहीं ले सकता, यहाँ तक कि मेरे नुकसान को जर्रा भर भी वापस नहीं ला सकता। जिंदा कहते हैं बहुत छोटा सा, वो छोटा सा नुकसान भी है, वो एक नुक्ते के बराबर नुकसान भी मेरा वापस नहीं आ सकता। मैं जितना मर्जी रो लूं, मैं अपने आप को खत्म कर लूं, जो शख्स इस दुनिया से चला गया वो चला गया। लेकिन मैं बहादुर शख्स हूँ, मैं उस नुकसान पर ना तो घबराया हूँ और ना मैं डरा हूँ, क्योंकि मैं बहादुर शख्स हूँ। मैं जंग में जाने से भी नहीं घबराता, मैं अपनी पहली सफ में होकर लड़ने से भी नहीं घबराता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं किसी के जाने पर खौफजदा होऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि उस खौफजदा होने की वजह से मुझे नुकसान से मैं बच जाऊंगा, मैं मरने से बच जाऊंगा। मैंने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। कहता अलबस्तु अस्वाबहु, मैंने उसको उसके कपड़े पहनाए। वखुलिकतु यौमा खुलिकतु जल्दा, और मैं तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन बहादुर पैदा हुआ। हम कहते हैं ना ये तो पैदाइशी ऐसा है, तो वो कहता है मैं तो पैदाइशी ही बहादुर शख्स हूँ। मैंने अपने हाथों से उनको कफन दिया, मैंने अपने हाथों से उनको लहद में उतारा, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह ये जा रहे हैं एक दिन मैंने भी चले जाना है, मुझे भी इसी तरह ये लिबास पहनाया जाएगा, मुझे भी ऐसे ही कब्र में उतारा जाएगा। तो कहता है कि मैं तो अपनी पैदाइश के दिन से ही बहादुर पैदा हुआ, कोई शख्स मुझे पीछे नहीं कर सकता, कोई शख्स मुझे खौफ में मुब्तला नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं पैदाइशी बहादुर हूँ। तो कहता है ज़हाबल्लज़ीना उहिब्बुहुम, चले गए वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते थे। फबक़ीतु मिस्ल सैफ़ि फद्दा, और मैं तलवार की मानिंद तन्हा रह गया। जैसे कहता है कि वो लोग भी चले गए जो मैं जिन्हें पसंद करता था, मैं जिनसे मोहब्बत करता था, मैं जिनको अपने साथ रखना चाहता था, वो सब लोग मुझे छोड़कर चले गए और मैं क्या हुआ कि मैं बाकी रह गया, मैं जिंदा रह गया। कैसे? जैसे कि तलवार रह जाती है तन्हा, तलवार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कहा जाता है ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह मैं भी अपनी इस म्यान में, अपनी इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ उन लोगों के जाने के बाद।
कहता है कि मेरे सारे दुख दर्द बांटने वाले लोग चले गए हैं, जो मुझे अपनी जान से भी प्यारे थे। मैं उनसे प्यार करता था, लेकिन अब क्या है कि मैं अकेला हूँ। वो दुनिया फानी से पूछ करके अब वो चले गए। उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का उसूल है, जो शख्स एक बार इस दुनिया से चला जाता है वो चला ही जाता है। और अब मैं अकेला उनकी जुदाई में जिंदगी बसर कर रहा हूँ। सबके बगैर मैं अकेला ही हूँ। मुझे अपनों की याद आती है। मेरे सारे साथी, मेरे सारे बहादुर, मेरे सारे नेक लोग इस दुनिया से छोड़कर, मुझे छोड़कर चले गए हैं, और मैं दुनिया में तन्हा ही रह गया हूँ।